Hello students, good morning. Today we'll talk about exam preparation, how to prepare for competitive exam. So here a very short video but very useful. You just have to focus on 3 points. First of all, preparation for competitive exams requires a shift from studying hard to studying smart, right? So for competitive exams you have to know the smart work, how to do smart work, right? Since you need to cover a lot of ground in limited time, focus on these 3 essential pillars. Number 1, master the blueprint first. So before touching a textbook, spend a full day analyzing the exam pattern and syllabus. I used to tell to students that first of all you should know the syllabus. So that is suggestion from my side, that you can take out hard copy of syllabus and then read it carefully, all units. Suppose there are 5 units, right? So that's the first unit, second unit, third and fourth, fifth. So that's just try to read it out, that what is given, what topics are being covered in your syllabus, and then underline the easiest topic. At least 2 3 5 10 topics you must be familiar with. So underline those topics in which you are very much comfortable or you are familiar with. So this way set your priority, that I'm going to cover these easiest topics. So this way you just have to move from simple to complex, right? Simple topics, then little bit complex, then more complex, most complex. This way if you study, then you will gain confidence also. एक बार आपने छोटा छोटा सा इजी टॉपिक कर लिए और उसको अंडरलाइन करो, हार्ड कॉपी निकाल के रखो, उसको अपने टेबल में पेस्ट करके रखो, और या एक जो भी है आपका वॉल उसमें लगाओ, और उसमें थोड़ा सा इनलार्ज करके हार्ड कॉपी पेस्ट टू योर नियर लाइक स्टडी टेबल. तो उस बोर्ड में जहाँ हार्ड कॉपी है वहाँ आपके नोट्स आपको दिख रहे हैं, और उसमें उन टॉपिक्स को अंडरलाइन करते जाओ जो जो कवर हो रहे हैं, इजी वाले टॉपिक. तो फर्स्ट यूनिट का इजी टॉपिक, सेकेंड यूनिट का कोई इजी टॉपिक, ऐसे हर यूनिट से कोई ना कोई टॉपिक होगा जिसमें आप थोड़े familiar है, थोड़ा आपको आइडिया है. तो जस्ट टेक आउट एंड अंडरलाइन द टॉपिक्स विच यू हैव कवर, राइट? अब one you have covered, suppose 2 topics from each unit or somewhat, so that is there. Now what they say, that before touching the exam you have to analyze syllabus and exam pattern. Then a second thing is that you have to think, you have to find out the exam pattern, what's the exam pattern. So that's the first step, that should be the first step. Then they are talking about weightage, that's a identify which topics carry the most marks. So then sometime if I talk about English grammar, so that then in English grammar many in many exams, that's a weightage is given to active voice, passive voice or narration, both the sentences, both types of sentences, very important. So this way you have to find out that's which topics carry the most marks. So then don't spend 50% of your time on a chapter that only accounts of 2% of exam. Sometimes some units or some topics are not given much weightage, so leave it, don't spend much time for that particular topic. Then previous year papers, many authors, many have suggested that you should solve the previous papers. That's the best friends, and they show you the language, actually the language of the questions and the specific depth required for each topic. तो उससे आपको किस तरह के किस लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं यू विल बी familiar with, है ना, फॉर ईच टॉपिक. तो फिर जब एग्ज़ाम में वो लैंग्वेज से आप familiar रहोगे तो क्विकली आप पढ़ पाओगे और समझ पाओगे व्हाट दे आर आस्किंग फॉर. तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट टॉपिक में यू हैव टू वर्क आउट ऑन सिलेबस एंड
कंटेंट, है ना, सिलेबस एंड सेकेंड थिंग इज फॉर्मेट, एग्ज़ाम फॉर्मेट। तो एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है, पेपर कैसा आता है, किसमें कितना वेटेज दिया जाता है, दिस वे द होल डे यू हैव टू वर्क आउट फॉर your exam pattern and syllabus, right? Now moving to next step, that is prioritize active recall over reading. So active recall, passive recall. Recall is remember, right? So passively reading notes or highlighting text is often an illusion of competence. तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक पैसिव, एक ऐसी सेक फॉर रीडिंग लगा ली और फिर आपको याद हो जाएगा, तो बहुत बड़े इल्यूजन में हो आप। बिकॉज द टेक्निक आफ्टर रीडिंग अ सेक्शन, क्लोज द बुक एंड ट्राई टू राइट इट डाउन और एक्सप्लेन द कोर्स कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द मेमोरी। तो आपको लगेगा नहीं जल्दी जल्दी आज मैं 2 टॉपिक्स कर लूँ, ऐसा मत करो। पहले एक टॉपिक करो, लग रहा है टाइम लगने दो, क्योंकि बाद में भी आपको सेम प्रैक्टिस करना है, तो वो आप अभी कर रहे हो। तो जस्ट इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड द टॉपिक, देन क्लोज द बुक एंड देन ट्राई टू राइट इट डाउन, व्हाट डिड यू गेट, उसको समझा के आपने। यहाँ पे साथ में मैं ये भी सजेशन दूंगी कि नाउ अ डेज दिट्स अ AI era, so that you can go with the beautiful videos or that's a what we can say PPT and material, टेक्स्ट मटेरियल, जिसमें भी सब देखो, उससे आपके टॉपिक से रिलेटेड PPT, इनफैक्ट रील्स भी होते हैं आजकल, तो आप देख लो कि उसमें अच्छे लेक्चर्स भी होते हैं, उनको सुन लो, PPT देख लो, रील्स देख लो, नोट्स बना लो, पढ़ लो, समझ लो, और उसके बाद रिकॉल करो एक टॉपिक को। एक टॉपिक के लिए आपको ये पूरा वर्कआउट करना है। तो दिस इज़ द टेक्निक, राइट। उसके बाद सेकंड, स्पेस्ड रिपीटेशन। डोंट जस्ट लर्न अ टॉपिक वंस, एक बार लर्न कर लिया और ऑन स्पॉट उस टाइम हो सकता है आपको याद हो गया हो। यूज़ अ शेड्यूल टू रिविजिट इट आफ्टर 1 डे, फिर एक दिन बाद उसको फिर देखो कि कल क्या देखा था, देन फिर एक वीक बाद उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, फिर एक मंथ के बाद। दिस मूव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब बार बार रिकॉल करोगे, बार बार एक टॉपिक को पढ़ोगे, तो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि सेकंड में आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है कि एक्टिव रिकॉल मतलब रीडिंग एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। जो पढ़ रहे हो वो इसलिए क्योंकि अभी आपको लिखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ो कि मुझे सिर्फ सेक फॉर रीडिंग नहीं, अभी मुझे इसको चेक करना है कि मुझे कितना याद हुआ, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा फोकस होकर पढ़ोगे। तो वो देखिए, और उसके बाद बुक बंद करने के बाद वो उसको मेमोरी में, आप खाना खा रहे हो, आप कहीं वॉक पे हो कहीं, तो रिकॉल करते जाओ कि अच्छा वो टॉपिक मैंने पढ़ा था, वो उसको कैसे लिखेंगे। और उसके बाद एक दिन बाद उसको रिवाइज करो, फिर एक वीक बाद और एक महीने बाद सेम टॉपिक, 2 हो गए 3 हो गए, उनको छोटा छोटा से नोट्स बना के रिकॉल कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना, तो वो बार बार रिकॉल होने में बहुत जल्दी याद होगा। और लास्ट है टेक टाइम मॉक टेस्ट अर्ली, बहुत ही ज़रूरी। जितने टेस्ट आप निकाल लो, ऑनलाइन टेस्ट दे दो, ऑफलाइन टेस्ट दे दो, हार्ड कॉपी हो तो हार्ड कॉपी में दे दो, लेकिन टेस्ट देते जाओ। क्या मैनी स्टूडेंट्स वेट अंटिल दे फिनिश द सिलेबस, सबसे बड़ी गलती टू टेक अ टेस्ट, दिस द मिस्टेक। सबसे बड़ी गलती है कि आप लास्ट तक वेट करो कि जब पूरा सिलेबस मैं पढ़ लूँगा, समझ जाऊँगा, तब फिर मैं टेस्ट शुरू करूँगा, ऐसा नहीं। सिमुलेट द स्ट्रेस, है ना, तो स्टार्ट टेकिंग सेक्शनल मॉक इवन इफ़ यू हैव ओनली फिनिश 30% ऑफ द सिलेबस। आपका भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी मॉक टेस्ट दे दो, राइट। दिस बिल्ड्स द स्टेमिना एंड स्पीड नीडेड फॉर द एक्चुअल एग्ज़ाम डे। तो क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम में आपका 30% ही हुआ, लेकिन आपने टेस्ट दिया, फिर 40% हुआ, फिर टेस्ट दिया, तो उससे आपका एक वो जो एनर्जी भी है वो भी सेव होगी, और वो समझ में आएगा कि मैं कितनी जल्दी फिनिश कर सकता हूँ, है ना। और लास्ट है द 2 for 1 रूल, मतलब फॉर एवरी आवर यू स्पेंड टेकिंग अ मॉक टेस्ट, तो कोशिश करिए कि हर घंटे में मॉक टेस्ट दे, एंड स्पीड एटलीस्ट 1 hour एनालाइजिंग योर मिस्टेक, और फिर उसको मिस्टेक को एनालाइज करो, रिवाइज करो, फिर से रीलर्न करो, एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू गॉट अ क्वेश्चन रॉन्ग इज़ मोर वैल्यूबल देन गेटिंग 10 questions राइट।
तो आपका वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ और बाकी सही क्यों हुए, उस पर फोकस करो, उन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करो, खुद ही सॉल्व करो, जल्दी करो। आपके पास मास्टर के फॉर्म में फ़िज़िकल कोई गाइड नहीं भी है तो फ़ोन बहुत बड़ा गाइड है। तो बस सब कुछ यही से पूछो कि आप ठीक जा रहे हो या नहीं, है ना। तो आज हमने देखा इस छोटे से वीडियो में कि दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो दैट्स फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फर्स्ट इज़ मास्टर द ब्लूप्रिंट। फर्स्ट सबसे पहले ब्लूप्रिंट बना लो, पूरा शेड्यूल बना लो, एग्ज़ाम पैटर्न देख लो, सिलेबस अच्छे से देख लो। नंबर 2, प्रायोरिटाइज एक्टिव रिकॉल और एक्टिव रीडिंग करो, एक्टिव उसमें मोड में आओ और फिर आप देखो और फिर उसको रिवाइज करते रहो तो बहुत जल्दी याद होगा। और टेक टाइम टू मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट भी देते जाओ समय समय के साथ। तो आपको क्या होगा, मॉक टेस्ट देने से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। So that is all for today. Thank you so much. God bless you.